Hello, hi, namaste everyone. I am Monica. Welcome back to this channel, that is Morning Super Classes. So this video is going to be the second part, series second of expected MCQ on Union Budget 2021 to 2022. If in case you haven't watched the first video or first part of the expected MCQ of this Union Budget 2021 to 2022, what I will do, I will give the link that video in the description box of this video. So go to the description box, click on the link, and you will be able to watch the first part of the same topic, यूनियन बजट 2021. अगर आपने नहीं देखा है इससे पहले वाली वीडियो सेम टॉपिक पे MCQ पर, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर देख सकते हैं. And before that, if you are new to this channel, subscribe to this channel, click the bell icon so you will be keep updated time to time. Yes, moving on the video. First question we have, Union Budget 2021 to 2022 proposed to give boost to the non-conventional energy sector, and which of the following is not the part of the non-conventional energy sector? Option A wind energy, option 2 solar energy, option C biomass and coal. तो ये क्वेश्चन बोलता है कि जो हमारा बजट है ये वाला 2021-2022 वाला, इसके अंदर सरकार ने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट करने की बात की गई है, और आपको इस क्वेश्चन में चूज़ करना है कि कौन सा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर का पार्ट नहीं है. सो व्हाट इज़ द ट्रिक ऑफ दिस क्वेश्चन? Non and not going to be eliminated. So negative going to be eliminated. What we are left with a conventional energy sector. So the right answer of this question is soul, यानी coal, यानी कोयला. So so conventional energy sector are the नॉन रिन्यूएबल, जिनको आप रिन्यूएबल नहीं कर सकते, टाइम लेते हैं बहुत, तो वो कोयला हो गया. एंड टॉकिंग अबाउट दिस एनर्जी सेक्टर ना, इन दिस यूनियन बजट 2021 to 2022, और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज 1000 करोड़ outlay, capital outlay, going to be invested in the solar energy sector for the boosting purpose, right? तो जो 1000 करोड़ जो रुपए हैं वो खर्च किए जाएंगे हमारे सोलर एनर्जी सेक्टर पर, right? And if you are someone who preparing for the railway government examination, so for this paper that was a plan of national railway plan, national रेलवे प्लान. सो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस नए बजट में प्रपोज किया गया है कि जो नेशनल रेलवे प्लान है उस पर 1500 यानी 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. ओके, दिस इज समथिंग you guys should remember. Moving on the next question. Union Budget 2021 to 2022 proposed to install confidence among the participant in the corporate bond market in the time of stress to enhance secondary market liquidity, remove the SBI restriction over a bond market, create a permanent institutional framework, remove the RBI restriction over a bond market, and none of the above. So ये क्वेश्चन बोलता है कि जो हमारा अगर जो हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है इसके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए, जो लोग इसमें पैसा लगाते हैं, राइट, उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए, और किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया है? टू एनहेंस द सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी. लेकिन किस प्लान के अंतर्गत, राइट? सो राइट ऑप्शन ये है कि क्रिएट अ परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. तो ये बहुत सही है. दोज पीपल हु आर पार्टिसिपेंट ऑफ बॉन्ड मार्केट, जो बॉन्ड मार्केट में पैसा लगाते हैं, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि सरकार जो क्या चाहती है, एक परमानेंट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क उन लोगों के लिए क्रिएट किया जाएगा, जो कि ना तो उनको सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करेगा ही, और वो जो सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी है ना कहीं वो भी इंक्रीज़ की जाएगी. According to the Union Budget 2021 to 2022, what is true about the National Railway Foundation? So NRF, okay, full form is National Railway Foundation. This can be asked in your examination. So according to the question, it's helped to strengthening the India's overall research ecosystem with focus on identify national priority trust area, and NRF outlay will be a 50,000 crore over a 5 year. So according to the option 1 and 2, option 2 only, both of them, or none of the above. So right answer is both of them. Under this National Research Foundation, ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल परफेक्टली होते हैं कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत जो हमारी इस ओवरऑल इकोसिस्टम को रिसर्च एम्फोसाइज करने पर ज़्यादा जोर दिया गया है, और जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है आने वाले 5 सालों में 50,000 करोड़ का जो एक्सपेंडिचर किया जाएगा इस
प्लान के ऊपर ये जो प्रपोज किया गया है हमारे जो नया बजट है 2021-2022 वाला. फुल फॉर्म यू नीड टू बी रिमेंबर, NRF, National Research Foundations. Next question we have, FM grant dash to the Solar Energy Corporation of India for the growth of solar energy sector. Option A 1000 crore, option 2 2000 crore, option C 500 crore, option D 1300 करोड़. देखो जो हमारा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन है यानी जो सोलर एनर्जी है, सरकार ने उस पर 1000 करोड़, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन, कि 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे. ये जो प्लान है प्रपोज किया गया है बजट 2021 और 2022 में. यूनियन बजट 2021-2022 FM means Finance Minister Nirmala Sitharaman ji proposed to amend the Insurance Act to additional foreign direct investment to insurance company from existing this to this. कि ये जो हमारा 2021 वाला बजट है, जो हमारी इंश्योरेंस जो सेक्टर है हमारा, उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज की जो की जा रही हैं एग्जिस्टिंग में, उनका क्या रेट है और कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहुँच जाएगा. तो राइट ऑप्शन इज़ 49% to 74%. कि अभी जो इंश्योरेंस सेक्टर में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है राइट नाउ इज समवेयर अराउंड जो 49% है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है बजट में कि 74% यानी 74% तक पहुँच जाएगी. इंश्योरेंस सेक्टर की बात हो रही है. Union Budget 2021 to 2022 seeks to consolidate the previous of which law into a single security code. Option 1 SEBI Act 1992, Security Contract Regulation Act 1956, Government Security Act 2007, Depository Act 1996. Option A and B, option 2 B and C, option C none of ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो हमारा सिक्योरिटी मार्केट है इसमें कौन कौन से एक्ट को कंसोलिडेट बोले तो मर्ज करने की बात की गई, यानी जोड़ने की बात की गई है ताकि वो एज अ सिंगल एंटिटी काम करे. राइट तो जो एक्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉमर्स ऑडियंस आउट देयर. सेबी एक्ट 1992 इम्पॉर्टेंट. तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द. जो हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 है और सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2007 और डिपोजिटरी एक्ट 1996. इन चारों एक्ट को मर्ज किया यानी कंसोलिडेट किया जा रहा है और एज अ सिंगल एंटिटी ये काम करने वाले हैं सिक्योरिटी मार्केट के अंदर. राइट सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर द करेक्ट ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट यानी करेक्ट ईयर्स ऑफ दीज एक्ट. तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको ईयर्स भी याद करने हैं इनके. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट 2021 to 2022 proposed that dash to be extended platform for the gig worker who are engaged for various dash businesses like Uber, Ola, Swiggy and Zomato. Option A security, social security benefit e-commerce, security benefit e-commerce, sanitary benefit e-commerce and promotional benefit e-commerce. So right option is a security benefit and e-commerce. Let me explain you what is what is the meaning of gig worker. So gig worker क्या है? gig worker वो सारा स्टाफ है जो कि ई कॉमर्स के ई कॉमर्स बोले तो जो कि प्लेटफॉर्म लाइक ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, अमेजोन, तो ये सारे ना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है. और इनकी जब आप ऑर्डर करते हो तो जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं, डिलीवरी प्रोडक्ट को आपके डोर स्टेप पर जो भी स्टाफ पहुँचाता है, जो भी लोअर लेवल स्टाफ है, उनको गिग वर्कर बोला जाता है. राइट सो अब उनके लिए हमारे जो न्यू बजट में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट को प्रोवाइड करने की बात की गई है. अब सोशल सिक्योरिटी बिकॉज समटाइम व्हाट हैपन ना, दीज वर्कर आर डिप्राइव्ड फ्रॉम गेटिंग दे ओन सैलरी. फॉर दिस दे ऑलरेडी प्रोवाइड द सर्विसेज टू द कंपनी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. तो कभी कभी इनको सैलरी नहीं दी जाती है, तो यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के अंतर्गत जैसे कि प्रोविडेंट फंड इनको प्रोवाइड किया जाएगा, इंश्योरेंस इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा इन वर्कर्स को कंपनी के तहत. सो दिस इज़ द सम ऑफ द एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट. राइट जो कि हमारे यूनियन बजट में प्रपोज किया गया है. जो भी कंपनीज जो ई कॉमर्स कंपनी है जो कि गिग वर्कर्स को एटलीस्ट ये बेनिफिट्स तो प्रोवाइड करे फॉर दे सिक्योरिटी पर्पज. राइट ओके, this is the explanation slide for the better understanding what is security, social security benefits and what is e-commerce businesses. So e-commerce businesses, these are like best example Ola, Uber, Swiggy, Amazon, all the e-platform businesses. Right for them they don't have to worry about the physical existence, so everything is going on the online. प्लेटफॉर्म वर्कर आर नॉट पेड, तो भैया इनको सैलरी कभी कभी नहीं पे की जाती, ये डिप्राइव हो जाते हैं. तो सोशल सिक्योरिटी के अंदर इंश्योरेंस, थोड़ा पेंशन और प्रोविडेंट फंड की सुविधा इनको प्रोवाइड की जाएगी.
Next question we have a Union Budget 2021 to 2022 propose a national rail plan aim at developing the adequate rail infrastructure by dash up to dash year and to cater the projected traffic requirement okay up to dash year. तो आपको यहाँ पर ये बताना है okay let me just read the option over here. Option A 2030 to 2015, option B 2022 to 2040, option C 2030 to 2045, option D 2021 to 2050. तो इस क्वेश्चन की ये बोल रहा है कि जो हमारा नेशनल रेलवे प्लान है इसमें बात की जा रही है कि हम अपने रेल सिस्टम के लिए उस बहुत स्ट्रॉन्ग और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किस सन तक डेवलप करेंगे और जो हमारा ट्रैफिक जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ये जो किस मतलब कहाँ तक कौन सी ईयर तक इतना स्टैब्लिश होगा कि किस पर्टिकुलर ईयर तक जो ऑडियंस होगी बोला जाए जो पॉपुलेशन होगी उनको बेस्ट सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा. तो राइट ऑप्शन वी हैव 2030 यानी 2030 तक तो हमें रेलवे का एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर बखूबी बिल्ड करना है और 2050 तक की जो भी पॉपुलेशन होगी कंज्यूमर होंगे रेलवे के उनको एक परफेक्ट सर्विस कैटर की जाएगी 2050 तक. राइट ऑप्शन इज दिस एंड प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज. This is the explanation part or some of the points under that has been proposed under Union Budget 2021 to 2022. It aim as developing the infrastructure. बोले तो इंफ्रास्ट्रक्चर 2030 तक डेवलप करना है जो कि जो ऑडियंस होगी ट्रैफिक जो होगा रेलवे के अंदर 2050 तक आराम से इसको कैटर करेगा. राइट. और ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा जो हमारा रेलवे के अंदर जो शेयर होता है ना फ्रेट बोले तो किराया तो वो जो करंट लेवल है ना 27% है लाइक 27% है राइट नाउ. तो उसको इंक्रीज करना है 45% है. दिस इज समथिंग प्रपोज इन और the government can be expecting from the coming financial year. इतना expect किया जा रहा है. So that's it for the video. Do like the video if you enjoy the video, right? If this video is going to be add something in your knowledge domain, and thank you so much you give that much time and have a nice time. I will meet in the next video.